to this press conference with Mark Boucher. As usual, we'll request that you put all your questions on the chat panel and then we'll get started. Would like to go first? Firdaus? Oh. Thanks, Supervisor. Mark, hard luck. Mark, all things considered, given the resources and the side you had at your disposal, were you quite heartened by what you saw, and which signs did you see that are positive and which ones still need work? Yeah, I think we played some good cricket, throughout the series. We had a very good meeting after our first game that we lost. I felt that we got ourselves into a strong position there, but unfortunately couldn't pull it off. The way we played in the second game is sort of the brand of cricket that we want to play. We need to show more intent, especially with the batting. The way that we go about, especially playing spinners, needs to stay a little bit more busier and not be sort of reactive, be more proactive. I think the guys really showed that, and it does show a little bit of bravery to go out and play like that. I think today we sort of try to play like that. Maybe we should have been a little bit smarter at certain stages of the game. But we're going in that direction, and that's the way that we want to play. I think that's encouraging. Even though we got ourselves into a bit of trouble, we still managed to get out, I thought, a half decent total, although maybe 15, 20 runs shy. We're still in the game until the last couple of overs. So a lot of positives. A couple of youngsters coming through. Shamo really bowled well throughout the whole series, and he's fitting in nicely into his role as being our sort of trump card leg spinner. Reza played nicely as well throughout the series. David's knock towards the end there was great. Good to see him back in the run. So as a bowling unit, I thought we did really well. Batting, the times that we didn't perhaps do that well, but all in all, I think it was a good tour. Zahir? Hi, Mark. Zahir here. Just after the test, you said the big moments weren't played well. Will you say that a similar thing in the T20 series with just at crucial times, maybe just not the correct options, or not just handling those big moments well that generally? Yeah, look, I think in the first game, the one nice thing about T20 cricket is that you can very much analyse every moment in the game. So I think in the T20, the first T20, over 6 to 10 batting, we got 15 runs was a bit of an issue. I think we probably lost, well, not probably, we did lose the game in that small period. So yes, we could have done better there. The second game went according to plan, and then the last game now, if you look at it in the batting, losing 3 or 4 wickets in the space of 3 overs was always going to put us under pressure. So yes, that key moment, we didn't play particularly well. So yes, I suppose you can look back and say, the key moments have really cost us in this tour. But for me, as a coach, we have spoken about them, and we'll continue to try and get through to guys and get through the players that they need to improve, and let's try not to make the same mistakes again. And I think if we can do that, then we're going to be growing in the right direction. Telford, followed by Hussein. How's it, Mark? Bad luck with the results, but I think the team probably performed better than a lot of people were saying they would in the series, before it started. So, what does that do for you've got Pakistan coming now in a few weeks to South Africa? You must be looking forward to that hugely, based on what's happened in this series. I think the nice thing for me is that throughout the last couple of years, we're really getting a nice group of players together, and our depth is certainly getting where we want it to be. We're giving opportunities to guys, and we're seeing what sort of players we have in a quite a big pool. I think because of COVID reasons as well. I mean, we've had to use quite a big pool of players. So guys are getting opportunities. They are learning some tough lessons. I mean, you want to be winning, and unfortunately we didn't. But I think the lessons that the guys are learning stands us in good stead in the near future, hopefully. So yeah, I mean, I'm pretty happy with this group of players. I think I think the media were sort of writing the guys off a bit. I think they put up a good fight in this whole series. And yeah, for me, going into a T20 competition back home now, it's going to be good to see how these guys go, and hopefully they stand up
put some pressure on the squad. It's World Cup year as well. So these guys they all stand a chance of getting into that final squad as well, and hopefully they put the numbers on the board. Sorry, guys, we've been told we've got 20 minutes until we have to leave the stadium. So we're going to only allow these last two questions, Hussein, and then we're going to wrap up with Ken. Hi, Mark. Just a couple of questions. What was the toughest part of this tour, and what were the best memories that you would take away from this tour? I think that's the tough part is always losing a series. So, that is always, we come here to win, we didn't come here to lose a series. So I think that's tough. And for me, just the way that we did play a couple of those big moments was a little bit disappointing. Sort of got ourselves into the game, and then we found stupid ways to get ourselves out of the game again. So I think there's a lot of learnings that we can take from Pakistan. I mean, it's a fantastic place to play cricket. You just see around the grounds, all the history around the grounds and some of the great talents that have come out of Pakistan. These conditions are foreign to us. We don't face a lot of reverse swing, especially in a test match environment. The spin is not as bad as what I think it is in India and Sri Lanka. It's not as much turn, but there's a definite technique that you still have to apply, especially when batting. Our bowling, I was really proud about the way that the guys went about the bowling. I think the bowling was probably a standout for me. There's a lot of lessons that the guys would have learned from this particular tour, and it can only help them going back into South Africa and becoming better players. Ken. Thank you. Hi, Mark. There was a stat I saw that in the last few years, South Africa conceded the second most runs in the last 4 overs in T20 cricket. Again, tonight we saw the death bowling being an issue. How much of a concern is that for you, and what's being done about it? Well, Ken, we're bowling a lot of Yorkers at training, so that's what's been done about it. We do understand. We also see the stats on TV. Yes, it is something that we continuously work at. I think it's quite difficult when there's quite a lot of dew around the ground. It's difficult to judge guys on that all the time. I don't think their death bowling was particularly good in saying that as well. So we also scored quite a lot of runs at the death. So I think we've got to be fair there. We're also trying to get quite a few players to be able to be options at death as well. So the only way that happens is if you put guys under a bit of pressure and say to them, tonight you're bowling death. And I think if we can get more guys who are basically options, then it's going to be better for us going forward as well. So, guys like KG and Anna, they've shown in the IPL that they're fantastic at death. They are always going to be options for us. And I think this particular tour, we tried out 1 or 2 other guys. And there are certain stages. I think the second game, a guy like Dwayne, I mean, the way that he bowled at death was fantastic as well. So, I think we are working at it. I mean, we understand and we know that stat is up there. So there's nothing more else that we can do is put guys into those situations and hope that they become better, and also just keep working harder at training times as well. Thanks very much, everybody, for joining us. And thank you to our colleagues here in Pakistan for hosting us. It's been a real pleasure. We'll catch up with our South African journalists in the very near future. Keep well. कोच हमारे साथ हैं सीरीज के बाद मिसबा भी पूछेंगे मिसबा भाई कैसा जरूरी थी सीरीज विन और कैसा देखी टीम है जी बहुत इम्पोर्टेंट था सबसे पहले बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम सबको आई थिंक टीम के मोराल के लिए बड़ा ज़रूरी था यंगस्टर्स थे सारे होम सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज खेलते हुए आई थिंक T20 में भी क्योंकि प्रीवियस सीरीज हम हारे हुए थे तो आई थिंक इट वाज मच नीडेड विन कॉन्फिडेंस के लिए यंगस्टर्स के लिए और टीम के लिए तो एक अच्छी टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज में कामयाबी हुई स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हुई नए लड़कों की आई थिंक बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह आगे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे जी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे सोहेल इमरान रशीद शपूर एंड हाफिज शहबाज मिसबा भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपने टेस्ट सीरीज भी जीती 2-0 से और T20 में 2-1 से कामयाबी मिली तो जो इनसिक्योरिटी हम लोग नहीं बल्कि पूरे सब लोग फील कर रहे थे कोचिंग स्टाफ को लेकर
तो वो इनसिक्योरिटी जो आप लोगों के हवाले से, तो वो अब खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को कहता आया हूँ कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं भाई, ना ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए यही है कि जो भी मैच हम खेल रहे हैं या सीरीज खेल रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और जितनी अपनी एफर्ट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं लड़कों की, वो करें। जाहिर ना आपके रिजल्ट कंट्रोल में है और ना ये आपके कंट्रोल में है कि बोर्ड ने कब तक आपको रखना है या कब बोर्ड ने आपको नहीं रखना। तो इसके बारे में सोचने से और प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल सबसे खुशी की बात ये है कि टीम का मोराल अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीरीजें जीते हैं, स्पेशली टेस्ट सीरीज और फिर अब T20 सीरीज। आई थिंक एक यंग जो कैप्टन है, नया कैप्टन है, उसके लिए भी बड़ा इनकरेजिंग है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बेहतर हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। मिसबाह, जो आपके इस वक्त करंट जो प्लेयर्स थे, हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो उस तरह की बैटिंग, यानी जैसे खुशदिल शाह हैं, इफ्तिखार हैं, हुसैन तलत, आपने उनको मौके दिए और अब जाहिर सी बात है कि कुछ प्लेयर आपके बाहर हैं, अभी टीम में नहीं हैं, शादाब हुए, इमाद वसीम हैं, हफीज़ हैं। तो ये जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये कितना मतलब मैटर करेंगे कि अगर ये प्लेयर्स वापस आते हैं तो ये जो इस सीरीज में जो खिलाड़ी खेले हैं और जो परफॉर्म नहीं किया, तो अब वो उनका किस तरह का फ्यूचर होगा, किस तरह देख रहे हैं वर्ल्ड T20 को सामने रखते हुए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए? देखें, जिन लड़कों को भी चांस मिल रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सीरीज के बाद जिसने नहीं भी परफॉर्म किया, सीरीज के बाद PSL है उनके पास, मोस्टली लड़के PSL में है। तो आई थिंक हमारे पास फिर सीनियर्स जो बाहर हैं अभी वो भी होंगे, तो एक अच्छा पूल हमारे सामने होगा और हमारे पास एक अच्छी चॉइस होगी कि जो इन फॉर्म है, जो उसमें शो करता है, जो बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है या मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करता है, तो हमारे लिए वो लड़के भी, सीनियर्स भी अवेलेबल होंगे। और फिर इनमें से भी अगर कोई लड़के करते हैं या कोई और नए लड़के भी करते हैं, तो आई थिंक ये हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी कि हमारे पास एक अच्छा पूल लड़कों का PSL के बाद आएगा और ज़्यादा हमारी सिलेक्शन और ज़्यादा जो क्वालिटी है हमारी टीम की वो बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह। पहले तो मुबारक हो बहुत बहुत कि आप होम ग्राउंड पे दोनों टेस्ट सीरीज भी जीते, उसके बाद T20 सीरीज भी जीते। मिसबाह, अगर हम देखें जो पिचेस खास तौर पे यहाँ T20 सीरीज में, तो जाहिर ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच की पिच है कि ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या कहेंगे पिचेस के म्यार के हवाले से? और अगर हम देखें मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में रन आउट हो गए, उसके बाद उससे तो हमारी बैटिंग ऐसा लग रहा है जैसे वन मैन शो है। तो पिचेस के हवाले से क्या कहेंगे और बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये ऐसे टाइम पे अभी क्रिकेट हुई है, कभी ऐसे टाइम पे क्रिकेट हुई नहीं और किसी को भी आइडिया नहीं कि पिचेस बज़ाहिर तो बिल्कुल बैटिंग पिचेस हैं। शायद वेदर की वजह से थोड़ा सा इस किस्म का बिहेवियर है और क्योंकि ऑस पड़ती है और ऑस पड़ने से थोड़ी स्टिकीनेस आ जाती है, तो वो फिर उसकी वजह से बिहेवियर जो है वो पिचों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे क्रिप हो रहा है गेंद और थोड़ा सा फंस रहा है, तो ये रीज़न हो सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक इसी वजह से बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया दोनों तरफ। आज साउथ अफ्रीका की तरफ से भी उनके बैट्समैन भी कोई उस तरीके से नहीं खेल सके, बट ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग अच्छी है, स्पिन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। जहाँ जहाँ खामियां हैं जाहिर है वो नज़र आ रही हैं, गलतियां कर रहे हैं हम लोग स्पिन को खेलने में। अभी हमने अगर इंडिया में हमने खेलना वर्ल्ड कप, तो आई थिंक बड़ी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें बेहतरी लानी है इसमें। नो डाउट कुछ प्लेयर आएंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, बट आई थिंक जो ऑब्वियस हमें चीज़ें, कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं, उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इन चीज़ों पे आइंदा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले पहले हम और बेहतरी लाएं अपने स्पेशली बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। जी रिक्वेस्ट सबसे ये प्लीज एक एक क्वेश्चन करेगा, टाइम शॉर्ट है, हमने विद इन 10 मिनट्स निकलना है, तो प्लीज सब एक एक क्वेश्चन करें और रेपिटेशन ना हो। जी अंस, कादिर ख्वाजा एंड देन यूसुफ अंजुम।
मिसबा भाई, मैंने इफ्तिखार के हवाले से बात करनी है। इफ्तिखार अहमद को काफी देर से मौका दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, अपनी सलाहियतों का जो मुजाहिरा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? दूसरा, हसन अली को पहले 2 मैचेस में मौका नहीं दिया गया, तो इसका थोड़ा सा बता दें। तीसरे मैच में उनको यूटिलाइज किया गया। एक क्वेश्चन आंसर प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सबकी टर्न्स आनी है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, प्लीज। थैंक यू। इफ्तिखार और हसन अली जी। हसन का, क्योंकि हसन बहुत लंबा सीजन खेल के आया और फिर टेस्ट मैचेस खेला, तो इस वजह से उसको रेस्ट दिया और देखा कि इम्पोर्टेंट मैच में उसको लेके आए हैं। और जहाँ तक इफ्तिखार की बात है, ऑब्वियसली बाकी भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिले हैं, परफॉर्म नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक इन सब के पास एक मौका है। जाहिर है डिस्कार्ड, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्लेयर को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो चाहे खुशदिल है चाहे इफ्तिखार है। इट्स ऑल अबाउट करंट फॉर्म किसकी क्या है। डेफिनेटली अभी PSL में खेलेंगे, देखेंगे उसके बाद कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कौन आता है टीम में, कौन नहीं आता। इनके पास अभी स्टिल चांस है, जितने भी प्लेयर हैं जो नहीं परफॉर्म कर सके, कि जाएं दोबारा से वहाँ पे परफॉर्म करें और देखें कौन जगह बनाता है और कौन नहीं। ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी, चीफ सेलेक्टर देखेंगे कि हाँ जी किसकी फॉर्म कैसी और कौन किस तरीके से टीम में आ सकता है। आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा पिचेस भी जिस तरीके से खेली है उसकी वजह से भी बेखा बैट्समैनों को डिफिकल्टी हुई। जी अस्सलाम वालेकुम ईश्वर भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो जिस तरह की टेंस सिचुएशन से आपने लड़कों का मोराल बुलंद किया और अपना भी मोराल हाई किया, सीरीज जीती। आसिफ अली T10 में काफ़ी अरसे से मतलब देखा हमने, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, और जाहिद महमूद का एडिशन हुआ, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। दोनों पर क्या कहते हैं? जी जाहिर है जी, हम आसिफ अभी वनडे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया उसने, T20 टूर्नामेंट में भी ठीक थी उसकी परफॉर्मेंस। और ऑब्वियसली आज देखा दो जो हमारे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन, उनसे रन नहीं हो रहे थे, तो उसको लेके आए, नहीं हुई परफॉर्मेंस। बट जाहिर है एक मैच उसको मिला है, आगे देखेंगे। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी लड़के भी PSL खेल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन किधर स्टैंड करता है। जाहिद महमूद ऑब्वियसली स्पिन हो रहा था बॉल, और यही जहन में था कि विकेट टेकिंग ऑप्शन को लेके आते हैं, खिलाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि दोनों लेग स्पिनर से अगर हम विकेट लेके प्रेशर डाल सकते हैं। तो आई थिंक उसने बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू बॉलिंग की, और जो सोचा था उसी तरह ब्रेक थ्रूज रहे कि मेरे ख्याल में अर्ली ऑन काफ़ी डैमेज किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन। तो बड़ी एक अच्छी खुशाइन खबर है पाकिस्तान के लिए। मिसबा, जिस तरह हमने देखा कि टॉस का किरदार बड़ा अहम रहा T20 सीरीज में, तो क्या फ्यूचर के लिए PCB को क्या तजावीज़ देंगे? तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मैचेस अगर जल्दी शुरू किए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि जो टीम टॉस जीतती है उसी को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा था। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एडवांटेज, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्प्रे के बाद स्पिनर्स को इशू नहीं था, ग्रिप बॉल हो रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि गेंद स्लिपर। थोड़ा स्लाइटली आप कह सकते हैं कि कंडीशन, थोड़ी सी पिच की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती थी सेकंड इनिंग में। बट मैं फिर कहूँगा कि डिपेंड करता है, टॉस में थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन ओवरऑल इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सी टीम अच्छा खेलती है। जैसे पहले मैच में हम लोग अच्छा खेले, अच्छा टारगेट दिया और उसको डिफेंड किया, एंड तक बॉल स्पिन भी हो रहा था और अच्छा ग्रिप भी हो रहा था। दूसरे मैच में हम उस तरीके से टारगेट सेट नहीं कर सके। जो एक एवरेज स्कोर है गद्दाफी स्टेडियम में कि 160 प्लस आप करते हैं 170, तो आपके पास जीतने के चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क था, बट इतना ज्यादा कोई एडवांटेज नहीं था कि बहुत ज्यादा ड्यू की वजह से गीला हो रहा है गेंद और बिल्कुल बॉलर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ऐसी कोई चीज नहीं थी। जाहिर है ये बोर्ड बेहतर जानता है, बड़ी चीजें होती हैं टाइमिंग के मामले में कि कैसे उसको देखना है, कैसे रखना है, कौन सा टाइम रखना है। तो ये वो बेहतर समझते हैं कि कौन सा टाइम और किस टाइम पे मैचेस। जी प्लीज नेक्स्ट है उमर, देन अकील, एंड देन बाकी प्लीज।
थैंक यू रजा। मिसबा भाई, ऑल्दो पाकिस्तान ये सीरीज जीता है, लेकिन हम ये सीरीज खत्म कर रहे हैं विद मोर क्वेश्चंस। अभी तक कुछ सेटलमेंट समझ नहीं आ रहे कि पाकिस्तान 8 महीने बाकी है वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड T20 के लिए, लेकिन पाकिस्तान सेटल्ड नजर नहीं आया। ऑल्दो हम जीते जरूर हैं, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर देखा फ्रजाइल है, ऊपर से टॉप ऑर्डर देखा, बाबर ने 2 मैचेस में नहीं किया, थर्ड में नंबर चेंज करना पड़ा, तो कुछ सेटल्ड नजर नहीं आ रहा। तो हमें देखते हुए लग रहा है सेटल्ड नहीं है। क्या आप खुद सेटल्ड हैं? आपको फील हो रहा है कि हम एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखें, अभी तो बहुत मैचेस हैं, हम अभी से क्यों फिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप कल नहीं है, हमने अभी 20 मैच खेलने। ये तो अच्छी चीज़ है कि हम ऐसे जो जैसे आज का मैच हो, ऐसे टेस्टिंग मैच जब होते हैं तो आपकी टीम का टेम्परामेंट बनता है, फाइटिंग स्पिरिट बनती है, फिर आपके कुछ की प्लेयर्स भी नहीं है। और ये ऐसा फॉर्मेट है, ये क्रिकेट में ऐसा है कि एक भी प्लेयर आपका आगे पीछे हो तो उससे फर्क पड़ता है। तो आई थिंक जब वो आपके प्लेयर्स पूरी तरीके से आपको फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है तो बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली T20 में किसी एक बैट्समैन से या किसी एक आपके मेन प्लेयर से बड़ा फर्क पड़ता है। तो होपफुली शादाब नहीं है, इमाद नहीं है, हफीज नहीं है, तो और भी अभी हमारे पास ये PSL है, PSL में भी परफॉर्मर आएंगे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस सिचुएशन में हमने ये सीरीज जीती है तो we will be in a very good position after this PSL going forward into the T20 World Cup. जी अकील भाई। बाकी आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। बाकी प्लीज क्वेश्चन करें। जी मिसबा, पहली बात तो ये, आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की आगाज में, लेकिन उसके बाद जिस तरह मिलर ने 164 तक हदफ 65 तक पहुंचाया, कितना आपके लिए, हमने देख रहे थे कि टीवी पे आपको जब दिखाया तो काफी आप परेशान दिखाई दे रहे थे इतना स्कोर होने के बाद, और जिस तरह विकेटें गिरी हैं, तो क्या आप समझते हैं कितना मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप समझते थे कि इतना स्कोर होने के बावजूद और बाबर आजम और रजवान के आउट होने के बाद मैच में पाकिस्तान आ जाएगा वापस? देखिए, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप इतने प्लेयर आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि यार ठीक है, अराउंड 100 110 15 20 तक आप एक टाइम पे लगता था कि 70 इवन अंडर 100 आप आउट कर लेंगे। बट क्वालिटी प्लेयर है मिलर, एक्सपीरियंस उसका T20 का, स्पिन को भी जिस तरीके से वो खेलता है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली IPL का इतना एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस है। आपको एक आउटस्टैंडिंग इनिंग उसने खेली है, ये नहीं कि कोई बॉलिंग हमने उसको इस तरह की किया। आई थिंक उसने जिस किस्म के शॉट्स खेले हैं, अच्छी खासी टर्न हो रही थी बॉल, अच्छी बॉलिंग को उसने जिस तरीके से वो इनिंग बनाई है, आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम। कई दफ़ा आप अच्छा भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी अपोजिशन में कोई प्लेयर ऐसा आउटस्टैंडिंग खेल जाता है और आपको उसकी डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली फील होती है। उस टाइम हो रही थी कि यार हम 100 पे कहाँ पे आउट कर रहे थे और कहाँ 164, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि कोई ये पार स्कोर है यहाँ पे, और विद स्लाइटली ड्यू और सेकंड टाइम थोड़ी सी पिच बेहतर होती है, तो होपफुली हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया। और अगर हम कहीं 12 ओवर्स 13 ओवर्स तक 100 तक जाते हैं और हमारे पास विकेटें हुई, नीचे हमारे पास काफ़ी अच्छी डेप्थ है हमारी बैटिंग में, तो पूरे ओवर अगर हमारे ऊपर के 8वें नंबर पे हसन था, ये खेल गया, तो होपफुली इंशाल्लाह ये चेज हो सकता है। तो आई थिंक वो स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, स्टार्ट अच्छा मिला है, उसके बाद जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। फिर बाबर की इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आई थिंक एंड पे हसन ने और नवाज ने बड़ा अच्छा फिनिश किया, उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबने किया। जी बाकी देन आमिर। मिसबा, आप पहली T20 सीरीज जीते हैं जब से आप टीम मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। हम अवे हार जाते हैं, हम होम जीत जाते हैं, तो यहाँ से आपने ऐसे मनफी पॉइंट क्या हासिल किए हैं जो कि आप अवे जाके उन पे काम करके बेहतर कर सकते हैं, जो आपको पिक्चर नजर आई हो होम पे खेल के? देखें, सीरीज जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ऑब्वियसली। जो सबसे अहम चीज़ है कि इंग्लैंड सीरीज
कई दफ़ा जो है ना वो जो रिजल्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, वो आपको उस तरीके से पिक्चर नहीं दिखाते। इंग्लैंड सीरीज आई थिंक हम बहुत अच्छा खेले। पहला मैच बारिश की वजह से जो आगे पीछे हुआ, हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। तो दूसरे मैच में भी हमने उसका अफसोस रह गया कि 190 प्लस करके हम लोग वो मैच हारे, तीसरा मैच जीते। तो ये बात नहीं है कि हम बाहर जाकर कोई अच्छा नहीं खेले, टाई करके आए सीरीज जो कि हमारी जीतने वाली थी। अगर पहला मैच पूरा होता तो चांसेस थे कि हम जीत के आते। न्यूजीलैंड में भी आपके सामने हालात, हमने वहाँ पे भी T20 में कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली। जिस किस्म की हालात में 5-6 दिन की तैयारी, 19 दिन के बाद हम उसके बाद खेले हैं विदाउट एनी मैचेस, विदाउट एनी प्रैक्टिस, और फिर भी कंपेटिटिव थे तीनों मैचेस में, और बड़ा कम मार्जिन से मैच हमारा, फाइनली एक मैच हमने जीता। तो ये बात नहीं है मेरे ख्याल में। फ़हीम के आने से और फास्ट बॉलिंग में हमारी स्ट्रेंथ, जिस तरीके से सारे बॉलर हमारे कर रहे हैं, आई थिंक हम बाहर भी हमारी टीम की जो फोर्स है, हमारी जो टीम है वो बेहतर है। फिनिशिंग हम नहीं कर सके, बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस, विद मोर कॉन्फिडेंस, इंशाल्लाह ये टीम जिस तरीके से बैटिंग में परफॉर्मेंस बाहर देना शुरू हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा। मिसबा, दानिश अजीज को आप चांस नहीं दे पाए, मतलब 3 मैच थे, हुसैन तलत खेल गए लेकिन दानिश को चांस नहीं मिला, क्या वजह थी और उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज you know this would have been a great time to try him out. जी, I think he was very close today. He was very close today. He was basically it was in between. तो थोड़ा सा हमें ये था कि इम्पोर्टेंट मैच है, इसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी इतने क्रूशल मैच में, प्रेशर मैच में, बिकॉज आई थिंक अच्छा प्लेयर है और स्पेशली वो स्पिन की साथ ऑप्शन भी देता है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह इसको हम आगे ज़रूर कंसिडर करेंगे और देखेंगे। बस मैंने बताया ना कि आज काफ़ी क्लोज था, बट सिर्फ ये थॉट थी कि बिल्कुल ही सारी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में चेंज ना करें, थोड़ा सा प्रेशर गेम है, बस ये सोच के फैन तलत को एक चांस और दिया। जी अरसलान प्लीज। मिसबा भाई ये बताइएगा कि जो सिचुएशन में हमने दोनों मैचेस जीते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है हमारे लिए, और आप इस सीरीज की जो आप कह रहे हैं कि लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप इस सारी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, हम कौन सा यार कोई नंबर 12 से खेल रहे थे, हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे थे, तो कितनी चीजें हम जीते हैं पहले उनसे T20 की। तो आई थिंक उनकी अच्छी टीम थी, ठीक है, उनके भी उन्होंने भी थोड़े से लड़के उनके मेन टीम के नहीं थे, बट ये लड़के उनके T20 के बेस्ट लड़के हैं जो पीछे परफॉर्म कर रहे हैं उनकी डोमेस्टिक में, और हमारे भी काफ़ी लड़के नए थे। तो आई थिंक जीत होती है, उसका कॉन्फिडेंस, और स्पेशली जिस किस्म का मैच आज जीते हैं, पहला मैच भी जिस सिचुएशन में जीते हैं, टफ सिचुएशन थी, सेकंड टाइम डिफेंड करना इतना आसान नहीं है, और आज का मैच भी जब ऐसे मैच, अब क्लोज मैच और इतने फाइट वाले टीम परफॉर्मेंस के साथ जीतते हैं, तो वो आपकी जो खामियां हैं वो तो आपको नजर आ रही हैं, जाहिर है, वो आप उनमें इम्प्रूवमेंट, उनके साथ अगर आप फिर फाइट करके ऐसे मैच जीतते हैं, तो फ्यूचर में उनको थोड़ा सा अगर आप ख़त्म कर लें, उन पे काम कर लें, तो आपके लिए परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा आपके पास मेरे ख्याल में चांसेस हैं। होपफुली इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस जो है वो टीम के काम आएगा, और जीत होती है, उसके बाद आप डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सबके